Hi everyone. This is the eighth lecture for your chapter Neural Control and Coordination. In the last class, we studied sensory organ eye. In today's class, we will be studying the sensory organ for hearing, okay, which is ear. It is also known as acoustic organ or phonoreceptor. Whenever you hear the word phone, it has to do with sound. Okay, so the receiver for sound or the receptor for sound is your ear, phonoreceptor. Its function is to receive sound waves. So whatever I'm speaking to you, you are listening, right? And let us say in background you have your fan on or you have something else on. So you are able to hear all these sounds. So this sound is received by an organ called ear. Okay, so its main function, the function of ear, is to receive the sound and also to maintain body balance. Now, people normally forget the second function, but it is equally important. Okay, you're able to walk straight just because you have this balancing system inside your ear. Structurally, the ear is divided into three parts. So, if we want to discuss the whole organ, we can divide it into three parts. This is just for our ease. Okay, हमारी समझ में आए इसलिए हम उसको तीन भाग में डिवाइड करते हैं. Otherwise, the whole organ, it has nothing to do with such division. Okay, this is just for our easy understanding. We divide it in three parts. The first part is external ear. External ear or outer ear. Okay, whatever you see outside is external ear. Then you have middle ear, and the last one is inner ear or internal ear. We will start with external ear. External ear, it consists of ear pinna. तो आप जो जिसको कान बोलते हो, है ना, कान खींचना, तो वो कान खींचने वाला जो कान है, right? So that is called ear pinna. And this here is pinna. पिन्ना जो है ये पूरा स्ट्रक्चर, ओके, उसमें भी ऊपर का भाग है, उसको आप बोल सकते हो ऑरिकल. एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड लॉब्यूल. जहाँ पे आप ज्वेलरी वगैरह कुछ भी पहनते हो तो उसको वो पार्ट को बोलते हैं लॉब्यूल. एंड ऊपर वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं ऑरिकल. एंड टुगेदर ये पूरा जो पार्ट है इसको बोलेंगे पिन्ना. क्लियर? तो आउटर ईयर और एक्सटर्नल ईयर इज मेड अप ऑफ पिन्ना एज वेल एज दिस कैनाल. ओके, ये जो कैनाल दिख रही है आपको पर्पल कलर में, दैट कैनाल इज कॉल्ड ईयर कैनाल. So these two parts form the external ear. Clear? Pinna is the outermost structure made up of elastic cartilage. Now, if you remember your tissues, then in tissues you must have studied different kinds of cartilage. Then one of them is yellow cartilage or elastic cartilage. Okay, इसलिए कान खींचते हो, then it comes back to its original position. है ना, वो आप मरोड़ते हो तो फिर भी वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, शेप में आ जाता है. So this is because of elastic cartilage. तो अंदर वो elastic cartilage से बना है. And if you talk about outside, then it is made up of stratified epithelium. Clear? So the covering, the skin is stratified epithelium. Clear? Now what is the function of pinna? If you know your animal kingdom, okay, फिर आपको पता होगा ये पिन्ना जो है, this is speciality of only mammals. Mammals से पहले किसी भी क्लास में, किसी भी फाइलम में पिन्ना नहीं दिखता. Okay, even till birds or aves, you do not see pinna. Pinna is visible only in your mammals. Okay, और अगर आपने कुत्ते वुत्ते का देखा होगा तो उसका पिन्ना जो है, that is even able to move. राइट, जिस जगह से साउंड आएगी उस जगह पे वो मूव कर सकते हैं. तो बिकॉज देयर ईयर ऑल्सो हैज सम मसल्स. ओके, उनके कान में मसल्स भी है, बट फॉर आवर ईयर्स, हमारे कानों में वो मसल्स जो है वो अभी वेस्टिजियल है, वो काम नहीं करते, इसलिए हम कान बहुत हिला नहीं सकते. सम ऑफ देम आर एक्सेप्शंस. किसी किसी को आपने देखा होगा कि वो कान हिला भी सकते थोड़ा बहुत, लेकिन वी आर नॉट जनरली एबल टू मूव आवर ईयर पिन्ना, while every other mammal can. Of course, there are some mammals, कुछ mammals ऐसे हैं जिसके पास ear pinna नहीं है, like whale. Okay, whale does not have. Seal does not have.
So some of these organism which live in water, they do not have ear pinna, क्योंकि वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, तो रेजिस्टेंस ना हो इसलिए उनमें ईयर पिन्ना दिखता नहीं है. क्लियर? नाउ कमिंग बैक टू द फंक्शन. कभी बचपन में या अभी भी पता नहीं आप लोग करते हो कि नहीं, जैसे यू टेक अ पेपर और पेपर का ऐसे कोन बना के कान में घुसेड़ दो, ठीक है, और फिर अगर आप सुनोगे तो आपको ज्यादा सुनाई देगा या थोड़ा क्लियरली सुनाई देगा. कभी सोचा है क्यों? राइट. सो द रीजन इज that whatever sound waves are coming, okay, जो भी आवाज की जो वेव है that is reaching, this will all get concentrated towards your ear. Fine. So same is the function of your pinna. Pinna का क्या काम है? So it is just, let me show you. It is just receiving all the sounds, जहां जहां से भी आ रहा है आवाज, वो उसको पिकअप करके एक जगह पे फोकस करेगा, है ना, वो सब फोकस होके इधर बीच में जाएगा एंड देन इट रीचेस योर ईयर, मिडल ईयर. ठीक है ना. तो दैट इज द फंक्शन ऑफ पिना. इसलिए कभी सुना है ये वर्नाक्युलर में हम लोग बोलते हैं सुपड़ा जेवा कान छे हाथी ना. If you have ever heard it, then you must have also known that elephants have a very good sense of hearing. Okay, elephants के पास बहुत ही अच्छी सुनने की ताकत होती है. Why is that so? Because they have this huge ear pinna and they can pick up sounds from 10 kilometers away, more than 10 kilometers away. Okay, so what is the function of ear pinna? It is focusing all the sound, it is collecting all the sound and reflecting the sound inside your ear canal. ठीक है. So we have discussed the first portion of your external ear. The second portion is called ear canal. Okay, ये canal जैसा जो था वो. Okay, this purple colored one. Or it is also known as external auditory meatus. ठीक है, ये उसका दूसरा नाम है, ear canal or external auditory meatus. Now this external auditory meatus is 2.5 centimeter long canal. ठीक है ना, वो ट्यूब जैसा है और 2.5 centimeter long ट्यूब है, extended from the base of pinna to the inner ear. ठीक है. If we look at this diagram, then from the base of pinna, ये pinna का base है, so from base of pinna to your ear drum, okay, or inner ear. चलो अभी if you look at this skull, okay, खोपड़ी को आप ध्यान से देखो, तो this hole, can you see? This hole is actually the opening of your ear canal. So if you look at this diagram, okay, this structure outside is showing you the bone. So this is the bone part of your skull, okay, and this your ear canal is present in between such bones. Fine. Chalo. In wall of such ear canal, you have some modified sebaceous glands. Sebaceous glands जो है जो ऑयल जैसा प्रोड्यूस करती है. हैव यू एवर फील्ड अपने नाक पे या कहीं पे आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा ऑयल जो है वो कभी जमा हो जाता है, राइट? सो दिस इज बिकॉज ऑफ sebaceous glands. Okay, they secrete something known as sebum. Okay, वो जो secrete करता है उसका नाम है sebum. हमारे पास दो टाइप की ग्लैंड्स होती है. एक ग्लैंड जो है दैट इज स्वेट ग्लैंड. स्वेट ग्लैंड जो है उससे पसीना आता है, नॉर्मल वाटरी फ्लूइड होता है. दूसरी जो ग्लैंड है उसको बोलते हैं सिबेशियस ग्लैंड. ठीक है. ये सिबेशियस ग्लैंड में से सीबम जैसा निकलता है और सीबम जो है इट इज एन ऑयली मटेरियल. ओके, नाउ दिस सिबेशियस ग्लैंड देयर इज अ मॉडिफिकेशन. ओके, नाउ दीज मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड्स आर कॉल्ड सेरुमिनस ग्लैंड्स. तो ये सेरुमिनस ग्लैंड आपको कहाँ दिखेंगे? दे आर फाउंड ऑन योर वॉल ऑफ द ईयर कैनाल. ठीक है, आपकी ईयर कैनाल की दीवार पे आपको दिखेंगे, उसकी जो स्किन होगी वो स्किन पे आपको दिखेंगे. देयर फंक्शन इज टू सिक्रीट सेरुमेन और ईयर वैक्स. ठीक है ना, कान का मैल निकालते हो तो दैट कान का मैल इज एक्चुअली ईयर वैक्स एंड इट इज गुड फॉर योर हेल्थ. इसको ज्यादा निकालना भी नहीं चाहिए, है ना. तो वो अपने आप ही क्लीन हो जाता है, आपको बहुत छूने की जरूरत भी नहीं पड़ती, है ना. तो यू हैव दिस ईयर कैनाल, उसकी लाइनिंग जो है उसमें सीरुमिनस ग्लैंड्स एज वेल एज हेयर. ओके, इसमें बाल भी होते हैं. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर? इट विल स्टॉप सम ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग.
Okay. Now, what is the function of earwax? First thing, the earwax is protecting your eardrum. कान के पर्दे को protect करके रखता है. Second thing, the cerumen, no, it has this property of repelling insects. मतलब insect जो है उससे बचा के रखता है, उसको पसंद नहीं है insect को ये earwax. ठीक है. Otherwise you must have seen insects. उनको जहाँ पे भी ऐसे hole जैसा कुछ भी दिख जाता है तो you see a lot of insects coming in and going out. So your ear, it is protected from insects because of this cerumen or earwax as well as the hair. Fine. Chalo. Now what you see at the end of this channel, okay, ये जो भी canal है, ear canal या external auditory meatus, इसके end में आपको क्या दिखेगा? You will find this ear drum. कभी वो गाना सुना है, डफली वाले डफली बजा, ओके, और व्हाट इज उसका नाम क्या था इंग्लिश में? आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर. वो डफली बोलते हैं, तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ ड्रम है ना, जो हाथ में पकड़ के आप बजा सकते हो. सो आई थिंक ट्रैम्बोलिन या ऐसे कुछ बोलते हैं उसको. सो वो जो है उसी टाइप का ये दिखता है, इसलिए इसको नाम दे दिया ईयर ड्रम. कान का है तो ईयर ड्रम. So at the end of this ear canal, you have eardrum. Now one thing to remember is eardrum is not a part of external ear, है ना, वो external ear में include नहीं करते हम लोग, उसको internal middle ear जो है उसमें include करेंगे. Okay, so at the end of the canal there is a stretch मतलब एकदम टाइट करके. आपने देखा होगा तबला वबला जो बजाता है वो एकदम ऊपर वाला जो लेदर होता है या जो भी, उसको एकदम टाइट करेंगे, और टाइट करेंगे तो ही उसमें आवाज आएगी इफ यू हिट इट, राइट. सो सेम थिंग हियर, इट इज अ वेरी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एकदम खिंचा हुआ मेम्ब्रेन है. इट इज थिन, इट इज obliquely placed मेम्ब्रेन. oblique क्यों? ऐसा सीधा नहीं है, देख सकते हो आप, इट इज oblique, ऐसे सीधे की जगह पे ऐसे थोड़ा आड़ा है, राइट, थोड़ा स्लैंट है, स्लैंटिंग पोजिशन. तो स्लैंटिंग पोजिशन इज oblique. So obliquely arranged membrane, okay, and it is called tympanic membrane also. इसका दूसरा नाम हो गया tympanic membrane. तो अगर आप कान में कैमरा डाल के देखोगे तो this is what it will look like. Okay, this here is your ear drum. जो कान का पर्दा आप बोलते हो तो ये वो है, ठीक है. Again it has a lot of parts which we are not interested in, but जो आपको इंटरेस्ट करना चाहिए वो है ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, वो हम बोन्स जब स्टडी करेंगे इसके बाद तभी आएगा. okay? तो इसके साथ अटैच्ड बोन जो है वो भी आप क्लियरली देख सकते हो. तो ये इतना थिन और ट्रांसपेरेंट है और एकदम खिंचा हुआ. इसलिए बोलते हैं कि जो क्यू टिप्स आप कान साफ करते हो उसको बहुत अंदर घुसाना नहीं चाहिए. इफ दिस मेम्ब्रेन गेट्स डैमेज्ड तो पूरा सिस्टम हिल जाता है ना, फिर आपको कुछ ना कुछ सर्जरी वर्जरी करवानी पड़ती है, इसको हील करना पड़ता है, ठीक है. सो क्यू टिप इज ओनली फॉर क्लीनिंग योर आउटर ईयर, है ना, एक्सटर्नल ईयर को क्लीन करना है. ईयर कैनाल के सबसे अंदरूनी हिस्से को छोड़ देना है. यू डू नॉट हैव टू टच योर insides of the ear, external this ear canal, ठीक है. It separates the ear canal from the middle ear, है ना, वो एकदम बीच में आ जाता है तो वो middle ear से external ear को separate करता है. चलो, now talking about the middle ear consists of tympanic cavity, ठीक है. तो ये पूरी कैविटी जो बनती है इसको बोलते हैं tympanic cavity. You can see this here. तो ये पूरा जो है this is tympanic cavity shown in pink, which is filled with air. ये भी हवा से ही भरा है, okay, but हवा is not coming through this tympanic membrane. इसमें तो कोई भी होल वोल आपको दिख नहीं रहा, कोई भी जगह नहीं है, तो हवा is not coming from here. Where is it coming from? It is actually coming from your mouth, है ना. चलो, so middle ear is connected to pharyngeal cavity. pharynx जो है, ठीक है, pharynx का भी आपने 3 हिस्से होते हैं ऐसा सुना होगा, right? Nasopharynx, then vasopharynx and all, right? So इसमें से जो आपकी ऊपर वाला गले के साइड में जो बक्कल कैविटी के पीछे वाला pharynx है उधर खुलता है ये. So middle ear cavity is connected to pharyngeal cavity by eustachian duct. तो ये जो पूरी आपको duct दिख रही है ऐसे ही pipeline, है ना, वो pipeline is known as eustachian duct. Okay, it can even open at the back of your mouth, है ना, तो at the back of your mouth. Remember this much. चलो,
तो ये हवा जो है इधर अंदर कहाँ से आती है? हवा आती है यूस्टेशन डक्ट से। यूस्टेशन डक्ट मेंटेन्स द प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है, कभी आपने ऐसा देखा है? वो बलून है, तो बलून को या कोई भी रबर वाली आइटम को आप ऐसे खींच के रखो। लेट मी शो यू। हाँ, ऐसे खींच के रखा है। एंड इफ यू पुट सम प्रेशर, है ना, बाहर से अगर प्रेशर ज्यादा आएगा तो इट विल बेंड लाइक दिस। या फिर अंदर अगर सक्शन प्रेशर क्रिएट हो गया, अंदर हवा ही नहीं है, देन ऑल्सो इट विल बेंड लाइक दिस। अगर बेंड हो गया देन इट विल नॉट बी एबल टू create any sound, right? So it is important to have equal pressure on both side of the membrane. और ये equal pressure कैसे maintain होगा? It is maintained through this eustachian duct. It maintains pressure on both sides of tympanic membrane. ये उसका काम. It expels high volume sounds through mouth to avoid damage to eardrum. कभी अगर आपने वो फुल डीजे वीजे बजा के कोई निकलता है ना किसी की बारात वारात में, तो सुना होगा, है ना? तो कान पे लगता है ना, एकदम पूरा तुम्हारा रिब केज भी ऐसे हिलने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। तो लाउड साउंड्स जो है दे कैन डैमेज योर ईयर। जैसे डैमेज ना हो इसलिए क्या होगा, थ्रू दिस यूस्टेशन डक्ट all the extra vibration, all the extra sound is thrown out into the mouth, है ना? वो माउथ में आके थ्रोन आउट हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस, एक्स्ट्रा साउंड, टू अवॉइड डैमेज टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। चलो, tympanic cavity is connected by internal ear cavity, connected to internal ear cavity by two apertures. One is oval window and the second one is round window. ठीक है, चलो अभी ये ओवल विंडो, राउंड विंडो एक बार आप ध्यान से देख लो, है ना? हमने बात की अभी एक्सटर्नल ईयर की, ये पिंक वाला जो है दैट इज योर मिडल ईयर, और अभी जो हम बात कर रहे हैं दैट इज योर इनर ईयर या इंटरनल ईयर। ठीक है, सो मिडल ईयर इनर ईयर से दो जगह पे कनेक्टेड है। एक जो है दैट इज कॉल्ड ओवल विंडो, ये आपको ओवल शेप दिख रहा है ना? एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड राउंड विंडो, जो इधर नीचे की तरफ है। ठीक है, तो टू विंडोज, दो विंडो जो है, विंडो मतलब क्या होता है पता है? इट इज नथिंग बट अ मेम्ब्रेन। जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, उसी हिसाब से उधर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ओनली। सो यू हैव ओवल विंडो ऊपर की तरफ एंड राउंड विंडो नीचे की तरफ। सो द मिडल ईयर is connected to the inner ear through these two windows. इनके साइंटिफिक नाम बोले तो बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवालिस। ओवालिस से याद रखना आप, ओवल शेप। ठीक है, फेनेस्ट्रा, whenever you hear fenestration या फेनेस्ट्रा, इसका मतलब होता है होल। तो उधर एक होल होगा, we will study why there is a hole or what type of hole. clear? So there is a hole there, और वो होल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होगा, taut, just like your tympanic membrane. Okay, and that is called your fenestra ovalis or oval window. Same way you have at the bottom another window which is called round window or fenestra rotundus or rotunda. Clear? रोटुंडा, आई डोंट नो अगर आपने कभी बचपन में या कहीं पे हिस्टोरिकल वो देखते टाइम पे, मॉन्यूमेंट के टाइम पे पढ़ा हो या सुना हो, बट रोटुंडा का मीनिंग होता है राउंड, है ना? तो ये राउंड विंडो है, दैट इज व्हाई द नेम इज फेनेस्ट्रा रोटुंडा। क्लियर? ओके, नाउ लेट अस सी व्हाई इट इज कॉल्ड फेनेस्ट्रा, मतलब इसको होल क्यों बोलते हैं। सो इफ यू फोकस ऑन दिस पिक्चर हियर, यू कैन सी द स्कल। ये जो भी आपको ऐसे पोरस दिख रहा है ना, दिस इज ऑल बोन्स, है ना? बोन है, तो इधर भी आपको बोन दिख रहा है, इधर भी बोन दिख रहा है, बट हियर कैन यू सी एनी बोन? नो। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर देयर इज नो बोन, और बोन नहीं है तो ही कनेक्टेड है, बोन नहीं है उधर ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना? तो इस हिसाब से दे आर कनेक्टेड। ओके, द इंटरनल मिडल ईयर इज कनेक्टेड टू द इनर ईयर एंड द टू विंडोज, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। चलो, नाउ टॉकिंग अबाउट दीज थ्री स्ट्रक्चर्स, ये तीन जो आपको दिख रहा है मिडल ईयर के, उसकी बात करते हैं। देयर आर थ्री ईयर ऑसिकल्स। ऑसिकल का मतलब होता है कि बोन्स, ओके, स्मॉल बोन्स which are present arranged in a chain in the tympanic cavity. वो tympanic cavity में एक chain की तरह arranged है, okay, one after the other. The first one is called malleus, second one is called incus,
थर्ड वन इज कॉल्ड स्टेपीज, ठीक है, मैलियस इनका स्टेपीज। मैलियस इज हैमर शेप्ड, इसका आप थॉर का हथौड़ा याद रख लो, है ना, तो हथौड़े के शेप का है, दैट इज व्हाई इट इज हैमर शेप्ड फर्स्ट बोन। समटाइम्स दे आर आल्सो रेफर्ड टू एज हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, तो इसका रीजन आप जान लो, है ना। तो ये हो गया आपका हैमर शेप्ड malleus. This is the first bone and it is connected to tympanic membrane. ये हो गया आपका तबला, मतलब tympanic membrane, है ना, तो उसके साथ कनेक्टेड है। This we saw in that picture. अगर आप कान में लाइट डाल के कैमरा डाल के देखोगे तो आपको थोड़ा शैडो जैसा दिखेगा ये malleus का, this part, okay, that is connected to the tympanic membrane, or the second side is connected to incus. अच्छा अच्छा, अभी ये तो तीन बोन्स है, हाउ बिग आर दे? आपको लग रहा होगा डायग्राम देख के कि वो मैडम इतने तो होंगे, बट नो, एक्चुअली दे आर दिस स्मॉल। अगर आपके फिंगर टिप के पे रख के दिखाऊं तो दे विल बी दिस स्मॉल। और इसमें भी आप देख सकते हो कि जो लास्ट वाला है स्टेपिस, दैट इज द स्मॉलेस्ट, एंड एक्चुअली आपके बॉडी का सबसे स्मॉल, ओके, द स्मॉलेस्ट बोन इन योर बॉडी इज स्टेपिस, ठीक है। इफ यू पुट इट ऑन अ पेनी, पेनी मतलब ये जो अमेरिकन कॉइन है, तो अमेरिकन कॉइन पे भी आपको इतने छोटे छोटे से तीन बोन्स दिखेंगे, क्लियर। सो दे आर दिस स्मॉल बोन्स, एकदम छोटे बोन्स है कान के अंदर, वेरी सेंसिटिव। चलो, तो द फर्स्ट वन इज malleus, हियर दिस इज malleus and incus are joined together by synovial hinge joint, है ना, इन दोनों के बीच में synovial joint है, hinge joint है। इफ यू नो द hinge joint present in your knee, आपके घुटने में जो joint है उसको भी synovial hinge joint बोलते हैं, तो same type of joint is present here. Then you have the second bone which is called incus. Incus is anvil shaped middle bone, okay. अभी एनविल कई लोगों ने शायद ना पढ़ा हो, ना देखा हो, तो दिस इज एनविल, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ऊपर है हथौड़ा और मैलियस, नीचे जो है दैट इज नोन एज एनविल। तो जो भी ब्लैक स्मिथ है, ओके, लोहार, तो ब्लैक स्मिथ जो होते हैं वो इसके ऊपर काम करते हैं, जो भी गरम मेटल के साथ बेंड वेंड करके जो भी, ठीक है। So this here the structure is called anvil. Fine. So that is why I was telling you the malleus is also known as hammer and incus is also known as anvil. क्योंकि ऐसे ही दिखते हैं. Fine. Now I don't know in previous मतलब मैं जब छोटी थी तभी कार्टून्स आते थे बहुत ज्यादा, तो देर यूज टू बी अ कार्टून कॉल्ड रोड रनर, फिर लूनी टून्स और ऐसे सब कार्टून, तो उसमें एनविल यूज टू बी यूज्ड अ लॉट, क्योंकि ये एनविल है और उसको किसी के ऊपर ऐसे गिराएंगे विराएंगे। आई थिंक टॉम एंड जेरी में भी शायद आपको दिख जाए, तो दिस इज एनविल। अभी आपको याद रहेगा कैसा दिखता है, क्या चीज है, ठीक है। चलो, इट इज जॉइंट टू स्टेपीज बाय बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना, ये दोनों के बीच जो है स्टेपीज विच इज द थर्ड बोन, एंड बिटवीन दीज टू देयर इज अ जॉइंट विच इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आपकी पेल्विस, ओके, पेल्विस मतलब कमर, और फीमर मतलब योर थाई बोन, इन दोनों के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ना, तो उसी के जैसा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको इनकस और स्टेपीज के बीच में देखने को मिलेगा, राइट। स्टेपीज इज स्टिरअप शेप्ड, स्टिरअप मतलब कभी घोड़े पे आपने बैठा हो और ये जहाँ पे पैर रखते हैं ना, सो दिस हियर इज कॉल्ड स्टिरअप, okay, so it looks like a stirrup, इसका shape stirrup जैसा दिखता है, that is why it is known as stirrup shaped, smallest bone of the body. It is connected to the membrane stretched over fenestra ovalis of inner ear, ठीक है। तो ये हो गया आपका inner ear, look at the diagram below, okay, this is inner ear, and in inner ear you have oval window, तो oval window मैंने आपको बताया था fenestra ovalis क्यों बोलते हैं, it is a hole which is covered by a membrane, ठीक है, तो मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड होगा आपका स्टेपस, फाइन। सो दिस इज हाउ द अरेंजमेंट इज, समझ में आ गया, एंड दिस इज व्हाट इट डज। देखो जैसे ही साउंड वेव्स आ रहे हैं, आपका तबला जो ईयर ड्रम है वो बजेगा, वो जैसे ही वाइब्रेट होगा, है ना, तो उसी हिसाब से आपका मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस, थ्री ऑफ देम वाइब्रेट। अभी ये जो स्टेपिस वाइब्रेट होगा तो इट विल कीप ऑन बैंगिंग ऑन द ओवल विंडो, तो इधर ओवल विंडो आएगा एंड ऑन द ओवल विंडो इट विल कीप ऑन हिटिंग लाइक दिस, clear। So this is how these bones are functional in the mechanism of hearing, which we shall study later.
है ना। इसके बाद हम इनर ईयर समझने के बाद हम पढ़ेंगे कैसे सुन सकते हो आप सब। चलो, तो हमारा मिडल ईयर इधर खत्म होता है एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इनर ईयर। बिफोर बिगिनिंग लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि ये इनर ईयर कैसे दिखता है, क्या क्या पार्ट्स है। ओके, इट लुक्स लाइक अ स्नेल। कभी आपने स्नेल कार्टून में या ड्रॉ की हो, पता नहीं, इफ यू हैव सीन अ स्नेल देन इट लुक्स लाइक अ वेरी क्यूट स्नेल, राइट। Here you can see the head, ये हो गई head snail की, ये body and this is the shell, है ना, वो पीछे वाला shell हो गया। तो it looks like a snail, your inner ear, ठीक है। अभी inner ear में जो snail का shell है उसको बोलते हैं cochlea। Cochlea literally means जो आप आपने ऐसा शेल जहाँ पे भी देखा होगा तो वो शेल को भी कॉकलिया बोलते हैं, ठीक है। सो दिस एक्चुअली मीन्स दैट शेल ओनली जो आपको स्नेल के ऊपर दिखता है, राइट। सो दिस पार्ट जो जलेबी जैसा है उसको नाम देंगे कॉकलिया। फिर स्नेल का हेड जहाँ पे है ना, तो वो हेड जहाँ पे है दैट इज नोन एज योर सॉरी, दैट इज नोन एज योर वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो ये पूरी जगह जो है इसको वेस्टिब्यूल बोलेंगे, फाइन। देन अटैच टू द वेस्टिब्यूल, ऐसे समझ लो ये स्नेल ने ऐसे स्पाइकी हेयर रखे हैं, है ना। तो ये तीन उसके बाल है या तीन साइड पे उसके बाल है। सो दीज आर कॉल्ड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कल क्यों, क्योंकि कंप्लीट सर्कल तो बन नहीं रहा। सो दीज आर द सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इनर ईयर, है ना। इनर ईयर जो है इट इज मेड अप ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इट इज मेड अप ऑफ योर वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के बाद आता है द शेल विच इज कॉक्लिया। You can see two nerves which are important here. One is facial nerve and the other one is called vestibulocochlear nerve, which is nerve number 8, which we have also remembered as auditory nerve, है ना। तो auditory nerve का दूसरा नाम है vestibulocochlear nerve। चलो, now let us start. The fluid filled inner ear called labyrinth consists of two parts. अभी labyrinth जो है वो इस टाइप का लगता है, ओके। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मेज? मेज आपने देखा होगा कई जगह पे ऐसा पजल जैसा होता है ना, यू डू नॉट नो कहाँ पे निकलोगे आप, गार्डन ऐसे होता है, राइट। तो लैबिरिंथ का मतलब क्या होता है कि एक गाइडेड पाथ है, ओके। एक ही पाथ है जिसको आपको फॉलो करना है और आप दूसरी जगह से निकल सकते हो। तो दिस हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैबिरिंथ, ओके। आई एम जस्ट शोइंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ लैबिरिंथ। चलो, so the inner ear it is made up of two fluid filled, अंदर खाली नहीं है, अंदर fluid filled है, okay, just like your जलेबी। जलेबी को अगर आपने कभी खाया हो तो अंदर से जूस निकलता है, same thing, fine। Here also you have जलेबी, ऐसे समझ लो। It is made up of two parts, you have bony labyrinth and a membranous labyrinth। इस structure में, इस diagram में you can see the outermost white part, okay, या cream color का part जो दिखाया है that is bony labyrinth। Bony labyrinth is actually very tough, okay, it is just like a bone की तरह ही है। बाहर का खोखला अगर आप कवर बोल दो तो कवर जैसा ही दिखेगा, ये क्रीम कलर का जो है, okay, this outermost cover, so this is known as bony labyrinth, ठीक है। तो ये bony labyrinth जो है it is filled with perilymph, okay, perilymph। उसके अंदर there is a soft part, ठीक है। अगर आप ऐसे समझ लो कि बाहर का एक ऐसे टफ लेयर है, दैट टफ लेयर इज फिल्ड विथ फ्लूइड और उसके अंदर एकदम सॉफ्ट पार्ट्स हैं एंड दीज सॉफ्ट पार्ट्स आर कॉल्ड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। वो मेम्ब्रेन से बने हुए हैं, वेरी सॉफ्ट, एंड दे आर फिल्ड विथ एंडोलिम्फ। एंडो मतलब अंदर, लिम्फ मतलब क्लियर फ्लूइड हियर, ओके। सो अंदर का जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड एंडोलिम्फ। दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ जो इसमें ब्लू कलर या पर्पल कलर में दिखाया गया है, क्लियर। सो आउटसाइड द कवर इज योर बोनी लैबिरिंथ और बोनी लैबिरिंथ के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट है दैट इज योर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ is filled with perilymph, membranous labyrinth is filled with endolymph। Here also in the right diagram you can see the outermost structure, ये एकदम आपको bone जैसा ही दिखाया है इस diagram में। So that outer structure is your bony labyrinth। उसको cut करके देखोगे तो inside you can see the blue colored part, that blue colored fluid is perilymph
और पेरिलिम्फ के अंदर आपको ग्रीन कलर का जो दिखाया है दैट इज मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ फिल्ड विथ एंडोलिम्फ। क्लियर? चलो, तो अगर आपको दिखाना है स्ट्रक्चर्स, so I had told you vestibule when we studied here, इसका जो head है snail का that is called vestibule। तो vestibule actually तुम्हारे जो bony labyrinth है उसका नाम है। when you cut it, है ना, when you cut this head of the snail and you look inside, अंदर अगर आप देखोगे तो you can find these separate structures, है ना, सब separate आपको दिख रहा है अलग अलग होके। तो इस सेपरेटेड वर्जन में ऊपर जो है दिस ऊपर वाला मेम्ब्रेनस labyrinth is called utricle and उसके नीचे वाला जो है that is called saccule। क्लियर? द आउटर द होल पोर्शन, ये हेड को पूरा आप बोलोगे वेस्टिब्यूल, लेकिन वेस्टिब्यूल का जब आप बोनी labyrinth when you cut it, okay, and when you look inside you find there are different parts in the membranous labyrinth। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है that is utricle and this नीचे वाला part is saccule। Clear? Fine. So this is what the bony labyrinth looks like. Okay, outside, from outside this is how it looks like। ठीक है, और उसको कट करोगे तो आपको अंदर ये दिखेगा। चलो, that much is enough for right now। We will study all the different parts as we go ahead। Now let us talk about cochlea। ये जो भी पूरा part है we will start with the shell like part, okay, spiral part जिसका नाम है cochlea। Let us start with cochlea। It is a coiled structure। In cross section the cochlea has 3 canals। ये देखो आप पूरा cochlea का structure है ऐसा, और इसको अगर आप क्रॉस सेक्शन लोगे, ओके, इफ यू टेक अ क्रॉस सेक्शन देन इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। कैन यू सी 1 2 एंड 3? ओके, तो ये 3 पार्ट से बना हुआ है। दीज आर द 3 पार्ट्स, ओके, इन अ बेटर डायग्राम। फाइन, you have scala vestibuli। scala vestibuli is this top part, ये ऊपर का पॉकेट जैसा जो भी बन रहा है that is called scala vestibuli। okay, here by the way you can see the bony labyrinth, it is actually made up of bone, है ना, एकदम कड़क बना हुआ। so that is your bony labyrinth। उसके अंदर filled होगा perilymph। perilymph के अंदर you can find these membranous labyrinth, है ना, तो ये membrane से बना हुआ है। देखो each of these cells are actually a membrane। Fine. So membranous labyrinth. Membranous labyrinth also is made up of 3 parts, 3 different parts। ऊपर वाला part is called scala vestibuli। It is situated at dorsal side, filled with perilymph। The second part is called scala media। Media मतलब बीच वाला, sometimes also referred to as cochlear duct, है ना। It is situated between scala vestibuli जो ऊपर है and scala टिम्पैनी जो नीचे है। तो ये दोनों के बीच में सैंडविच हो गया आपका स्केला मीडिया। इट इज ऑल्सो फिल्ड विथ एंडोलिम्फ। देन यू हैव scala tympani। okay, so this here is scala tympani। scala tympani is situated on ventral side and it is filled with perilymph। तो perilymph, endolymph, perilymph हो गया। ये हो गया आपका मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड ये हो गया आपके पेरिलिम्फ जो ब्लू कलर में दिखाया है, एंडोलिम्फ वाला पिंक कलर का। क्लियर टिल हियर? नाउ लेट अस फोकस ऑन दिस ओनली। ये जो बीच वाला पार्ट है उसी पे ज्यादा फोकस करते हैं, विच इज योर स्केला मीडिया। ओके, सो द मेम्ब्रेनस रूफ ऑफ स्केला मीडिया इज कॉल्ड राइसनर्स मेम्ब्रेन। ये जो रूफ है, रूफ मतलब छत, है ना, तो ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड राइसनर्स मेम्ब्रेन, फाइन, विच इज शोन हियर। दैट इज द रूफ ऑफ योर स्केला मीडिया। द फ्लोर जो नीचे का पार्ट है that is called basilar membrane। base मतलब floor और base पे से नाम आया basilar, तो basilar membrane is present here। At the base of cochlea the scala vestibuli ends at oval window। अगर आप ऐसे मिडल ईयर को देख लो और ये कॉक्लिया को खोल के देख लो then this is what is happening। okay, जो स्केला वेस्टिब्यूलाई है, okay, so this here is scala vestibuli, बीच में scala media, नीचे scala tympani। तो scala vestibuli पे आपका oval window है and on this oval window your stapes can be found। clear? while the scala tympani, ये हो गया scala tympani। तो scala tympani जो है it ends in the round window। ठीक है, तो ये एक याद रखने वाली बात आपके कॉक्लिया में जो let me
show if you can see here, ये वाला डायग्राम में. हाँ, you can see here is the oval window and here is the round window. Oval window जो है that is continued in form of scala, um, here the topmost, okay, scala vestibuli, and then round window is continued from scala tympani here. ठीक है. Now let us talk about the basilar membrane. है ना, हमारी जो खास चीज जो हमको समझनी है वो है ये part which is called basilar membrane. On the basilar membrane there is an organ of Corti या organ of Corti, जैसे भी आप उसको pronounce करो. This is that organ of Corti. Okay, on scala media's basilar membrane. It has hair cells. Can you see these skin colored cells are called hair cells? Okay, and hair cells, their name comes because they have these hair. Okay, so hair cells are present, which are actually your auditory receptors. They are the ones who will receive the sound. The basal end of hair cell is in close contact with efferent nerve fibers. अभी ये हो गया उसका apical region, apical मतलब top, ये हो गया उसका basal end. Okay, so these are the basal ends, and if you can see, basal end is connected to the efferent nerve. Efferent nerve जो है, this is a sensory nerve which is going towards your CNS, towards your brain. And this actually forms the cochlear nerve, है ना, जो nerve number 8 है उसका पूरा नाम है vestibulocochlear nerve. तो cochlear part जो है वो इधर से आता है from these hair cells. A large number of processes called stereocilia are projected from apical part of each hair cell. तो ये hair cell है, उसके ऊपर से ये जो hair निकल रहे हैं, they are together known as stereocilia. पता नहीं आपने कभी केमिस्ट्री में स्टीरो ऐसा वर्ड सुना हो या नहीं, या स्टीरियो सिस्टम, है ना, तो उसका स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस. फाइन. हाँ, और इन दिस केस साउंड, तो स्टीरियोसीलिया होता है, ओके, विच कैन मूव इन द स्पेस. फाइन. Above the organ of Corti is thin elastic membrane called tectorial membrane. अभी ये हमने organ of Corti जो है वो इतना सा ही है. Okay, you have some XYZ extra cells also which we are not which we do not want to understand. Okay, हमारे लिए important नहीं है. हमको याद रखने हैं hair cells having stereocilia or hair cells being connected to the efferent nerve. ठीक है. अभी ये सेल्स के ऊपर आपको दिख रहा है ये पर्पल कलर का हाथ जैसा स्ट्रक्चर, दैट एक्चुअली इज कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. ठीक है. इट इज अ मेम्ब्रेन विच इज अटैच्ड और इन क्लोज कॉन्टैक्ट, अटैच तो नहीं है बट क्लोज कॉन्टैक्ट में है टू योर स्टीरोसीलिया. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी हियर स्टफ, है ना, हम सुनते कैसे, लेट अस अंडरस्टैंड. Sound waves are collected by your ear pinna. ये तो मैंने आपको बताया कैसे it is collecting all the sound and it is focusing all the sound towards your external auditory meatus or auditory canal, ear canal. These sound waves travel through the ear canal. They hit the eardrum. The eardrum vibrates, and when the eardrum vibrates, the vibrations reach up to oval window. कैसे? तो ये ईयर ड्रम वाइब्रेट हो रहा है, उसकी वजह से मैलियस वाइब्रेट होगा, देन इनकस एंड स्टेपीस. स्टेपीस जो है वो हमने देखा कैसे डोर पे कोई बजाता है वैसे वो बजाएगा, किसके ऊपर, ओवल विंडो के ऊपर. ठीक है. तो ओवल विंडो पे इट विल स्टार्ट बैंगिंग. नाउ वी हैव स्टडीड दैट ओवल विंडो इज कंटिन्यूड इन स्केला वेस्टिब्यूली. ठीक है. तो वो भी हम देखेंगे. चलो, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. ईयर पिना collecting all the voice, your auditory canal, tympanic membrane vibrating, all the bones vibrating, and your stapes banging on the this oval window. Next, the membrane on the oval window. याद करो मैंने आपको बोला था it is also known as fenestra ovalis. तो वो fenestra के ऊपर membrane जो है stretched membrane, it will also start vibrating. वो vibrate होगा तो scala vestibuli is filled with your perilymph. Okay, तो perilymph जो है that will also vibrate. जैसे पानी के ग्लास में पानी आप भर के रखो और उसको हिलाओगे तो वाइब्रेशन देखेंगे ना, तो उसी हिसाब से इधर भी कोई बैंग कर रहा है, ये जो स्टेपीज है इट इज बैंगिंग ऑन द विंडो, देन द इनर फ्लूइड इज ऑल्सो मूविंग. ठीक है. तो ये अंदर का वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेटिंग 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 फ्रॉम योर स्केला
वेस्टिब्यूली जो ऊपर वाला है, it will reach to scala tympani जो नीचे वाला है. Okay, it is forming together the bony labyrinth, क्योंकि bony labyrinth only is filled with perilymph. So whatever is shown in blue and the red arrows are showing where the vibrations are going. ठीक है? Due to this vibrating waves, the Reissner's membrane and basilar membranes of wall of scala media also vibrate. अभी हमने देखा कैसे ये स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला टिम्पैनी दोनों में वाइब्रेशंस आ रहे हैं. तो वो वाइब्रेशन जो ऊपर और नीचे ब्लू वाली जगह है, तो उधर वाइब्रेशन हो रहे हैं. तो दिस मेम्ब्रेन विच इज राइजनर्स मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन विच इज बैसिलर मेम्ब्रेन दोनों वाइब्रेट होंगे. When they start vibrating, these vibrations are now traveling through the endolymph. Endolymph कहाँ पे आता है? Inside your scala media, है ना? तो ये scala media में जब vibrations पहुंचेंगे, then your organ of corti will also vibrate. This is how it is vibrating. Can you see? ये organ of corti है and this is how it is vibrating. पूरा vibrate करेगा ऐसे. Nice. Now, because of these vibrations, the hair cells, okay, the hair of sensory cells, they hit the tectorial membrane. ये जो ऊपर वाला membrane है, that is your tectorial membrane, white colored one. तो जब ये tectorial membrane के साथ टकराएंगे, okay, the hair of sensory cells, then a nerve impulse is generated. देखो आपने ऊपर गया तो इधर depolarization generate होगा, है ना? तो depolarization जो है, that will be carried through this yellow colored nerve. तो इस तरीके से दिस मूवमेंट, ओके, ये जो वाइब्रेशन है दैट इज एक्चुअली sensed, okay, and an action potential or nerve impulse is generated. Cochlear nerve, which is a part of your auditory nerve, it carries the impulse to brain. Fine. And vibrations travel through perilymph. Abhi now focus here before going there. ये लेट अस से हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई भी वाइब्रेट हुआ, और जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने थे, all of that also we generated. Now remember, some of these vibrations, they were coming back through this scala tympani, right? From the scala vestibuli, a lot of vibrations were coming down through scala tympani जो ये नीचे वाला है. Now in this scala tympani, all the vibrations, they will hit the round window. ओके, तो अभी इधर राउंड विंडो का आपको फंक्शन पता चलेगा. सो ऑल ऑफ दोज वाइब्रेशंस आफ्टर सेंसेशन हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड, है ना? आपको नर्व सेल्स ने पिकअप कर लिया कि चलो कोई साउंड आ रहा है. आफ्टर ऑल ऑफ दैट हैज बीन डन, ये वाइब्रेशन को कम तो करना है, कहीं पे तो रिमूव करना है. तो व्हाट विल हैपन, ऑल ऑफ दीज वाइब्रेशंस दे विल ट्रैवल थ्रू स्केला टिम्पैनी और वो जाके राउंड विंडो को हिलाएगा. जैसे ही राउंड विंडो हिलेगा, ऑल ऑफ दोस वाइब्रेशंस विल नाउ ट्रैवल डाउन योर यूस्टेशियन कैनाल, है ना? यूस्टेशियन ट्यूब जो है उसके थ्रू ये एक्स्ट्रा साउंड निकल जाएगा. तो इस हिसाब से वाइब्रेशंस आर ब्रॉट बैक टू नॉर्मल, और इसीलिए वो सब इकट्ठा नहीं हो जाता आपके कान के अंदर. ठीक है? सो द वाइब्रेशंस दे ट्रैवल थ्रू पेरिलिम्फ, रीच अप टू द मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड अराउंड राउंड विंडो एंड दे आर डिस्ट्रॉयड. अब देखो ये नीचे का जो है, दिस इज द राउंड विंडो, यू कैन सी वो भी कैसे वाइब्रेट हो रहा है. Okay, वो वाइब्रेट क्यों हो रहा है? ऑल ऑफ द साउंड एंड ऑल ऑफ द वाइब्रेशंस दे आर कमिंग आउट थ्रू दिस राउंड विंडो, और इस हिसाब से वो अंदर बैलेंस मेंटेन करके रखेगा. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, अभी देखो कॉक्लिया जो था दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर हियरिंग, वो सुनने के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है? नाउ वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर बैलेंस, वो बैलेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है. So inner ear is we will talk about vestibule. I had told you this is the structure of bony labyrinth जो bone से बना हुआ है. Okay, and this head of the snail is your vestibule. ये जो head बन रहा है snail का वो vestibule है. इतना तो याद है? Okay, fine. So vestibule, it consists of 3 semicircular canals. ये एक, ये दो और ये तीन, तो 3 semicircular canals, each at right angle to each other. हर एक जो 3 है वो एक दूसरे के राइट एंगल्स पे है. हैव यू एवर ड्रॉन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस इन फिजिक्स, है ना? एक्स वाई एंड जेड एक्सिस जो भी आप ड्रॉ करते हैं, यू से दैट ऑल ऑफ दीज आर एट राइट एंगल टू ईच अदर. सो सेम वे इधर भी एक्स वाई एंड जेड 3 एक्सिस, और तीनों एक्सिस पे एक एक आपका सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो दिखेगा.
somewhat like this. These blue colored lines are showing you the x, y and z axis. और हर एक axis पे आप देख सकते हो कि एक semicircular canal है. Right? Let us say on the y axis you have this canal, then on the x axis you have this canal, and then on the z axis you have this canal which is coming towards you. ठीक है, तो इन ईच डायरेक्शन, जो हम 3D बोलते हैं ना, 3 डिमेंशन, तो हर एक डिमेंशन में हमारे पास एक एक सेमी सर्कुलर कैनाल है. द सेकेंड थिंग टू रिमेंबर इज यूट्रिक्यूल. अभी याद करो, सॉरी यूट्रिकल, पता नहीं ये स्पेलिंग में यू कैसे आ गया वापस, चलो कोई बात नहीं. सो यूट्रिकल, जब ये बोनी लैबिरिंथ को आप तोड़ोगे तो अंदर आपको क्या दिखेगा, 2 पार्ट्स. ओके, दिस फर्स्ट पार्ट हियर इज कॉल्ड यूट्रिकल. इन वेस्टिब्यूल देखो, इसलिए ऐसा लिखा है इन वेस्टिब्यूल ना, वेस्टिब्यूल के अंदर. एंड देन यू हैव सैक्यूल, जो ये पार्ट है टीयर ड्रॉप शेप्ड. ओके, सो यूट्रिकल एंड सैक्यूल. एट द बेस ऑफ कैनाल इज स्वोलन स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्प्यूला. जहाँ पे भी ये कैनाल एंड हो रहा है उधर एक स्वोलन स्ट्रक्चर है जिसको बोलेंगे एम्प्यूला. एम्प्यूला याद रख लो, जहाँ पे भी स्वोलन होगा कहीं कहीं ना कहीं, तो यू विल अगेन बी यूजिंग दिस टर्म एम्प्यूला. ठीक है, तो एम्प्यूला का मतलब ही ऐसे होता है कि वेयर इट इज अ लिटिल स्वोलन. चलो, नाउ दैट वाज ऑल अबाउट वेस्टिब्यूल. स्नेल के हेड के बारे में हमने बात की. नाउ लेट अस टॉक अबाउट एम्प्यूला. एम्प्यूला इज स्पेशल, inside ampulla is a special projection called cristae. अभी now we are focusing on this part. Okay, let us see कि ये एक एम्प्यूला है. एम्प्यूला से ये सेमी सर्कुलर कैनाल निकल रही है और वापस वही एम्प्यूला पे आ रही है. So this one part only we are focusing on. So that is shown here. ये देखो, आपका swollen region is ampulla. ये हो गई आपकी semicircular canal which is filled with endolymph. ठीक है, this blue part here, it is filled with endolymph. Now in this ampulla you can see this part. है ना, ये जो नीचे का आपको part दिख रहा है पूरा सेल वाला part, that part is called cristae. ठीक है, जैसा हम माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ते हैं ना, क्रिस्टे कैसे ऐसे बाहर निकलता है, कोई मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, वैसे ही here also you have these cells, okay, forming a membrane, and this is this swollen part or bulging part is called cristae. It consists of small sensory cells with small immovable microvilli called stereocilia. अभी देखो, ये हो गया आपका zoomed version and this is your cristae. cristae के अंदर आपको पर्पल कलर के जो cells दिख रहे हैं, these are hair cells, okay, and hair cells are here the sensory cells. Okay, these sensory cells have cilia और ये cilia को हम बोलेंगे stereocilia. Now the stereocilia जो भी है ऐसे hair cells को, it is together forming this cupola. ये जो आपको चोटी बना के दिखाया है, that is called cupola. वो एक्चुअली एक मेम्ब्रेन ही है which is consisting of all of these hair cells. तो ये hair cells को सबको इकट्ठा करके जो रखता है, that is this cupola. All these microvilli of ridge are bind together like a bag and form cupola. ठीक है, ऐसा पॉलिथिन बैग लगा दिया ऐसे सोच लो और इसको बोलेंगे cupola. फाइन, दिस वाज ऑल अबाउट एम्पुला. यही बात थी सिर्फ एम्पुला की, बस ये स्ट्रक्चर याद रख लो. नीचे क्रिस्टे, ऊपर चोटी बना के रखी है, पॉलिथिन लगा के रखी है, दैट इज कुपला. और स्पेशलिटी क्या है, यू हैव हेयर सेल्स विच आर सेंसरी. देख सकते हो आप, हेयर सेल के नीचे से नर्व निकल रही है. ठीक है, और ऊपर की तरफ यू हैव दिस मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड कुपला. नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैक्यूला. मैक्यूला जो है, these are the regions. Okay, ये regions है. When you look further into the saccule, ये पूरा part, इसको sorry, इसको हम बोलेंगे utricle. ये पूरा part जो है वो, okay, and this part here is your saccule. तो saccule और utricle दोनों में आपको एक एक ऐसे structures दिखेंगे पर्पल कलर के, which are called maculae. Okay, so macula of saccule and macula of utricle. Inside the macula they are filled with endolymph. ये भी क्लियर है क्योंकि हमने पढ़ा कि your utricle and saccule only are filled with endolymph. तो maculae also they are filled with endolymph containing numerous calcium carbonate particles. अभी ये नया है, ठीक है, they are filled with calcium carbonate particles. These calcium carbonate particles are called autoconia. ठीक है, इसको autoconia बोलते हैं. तो here you can see ये पर्पल पर्पल कलर का आपको जो दिखा है ना,
These are actually crystals of calcium carbonate. ऐसे समझ लो चौक जो है चौक डस्ट आपने कभी देखा है तो वो चौक डस्ट जैसा ही दिखेगा एग्जैक्ट. So that is how these autoconia are present. Cristae and macula have specific receptors responsible for sensing body balance and posture. अभी देखो हमने ऑलरेडी क्रिस्टे तो पढ़ लिए जो एम्पुला में दिखते हैं. हियर 1 2 एंड 3 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स तो 3 एम्पुलास तो यू हैव 3 क्रिस्टे. तो ये हो गया आपके क्रिस्टे. दिस इज द कूपला जो हमने अभी डिस्कस किया. ओके सो दीज क्रिस्टे एज वेल एज योर मैक्यूला जो है वो आपको दिखेगा यूट्रिकल और सैक्यूल में. क्लियर. तो यूट्रिकल और सैक्यूल के मैक्यूला और सेमी सर्कुलर कैनाल या एम्पुला के क्रिस्टे ये जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर. the sensory cells are in contact with small nerves. आप नीचे देख सकते हो जो भी येलो कलर में दिखाया है. ओके and these nerves together form the vestibular nerve branch. तो अभी आपको समझ में आएगा क्यों नर्व नंबर 8 को वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर ब्रांच बोलते हैं. राइट. सो कॉक्लियर ब्रांच वी सॉ इट कमिंग आउट ऑफ कॉक्लिया. Vestibular branch is coming out of these macula and cristae. Here you see अभी देखो ये ऊपर जो है these are crystals of calcium carbonate which are also known as autoconia या otolith. जैसे ही हिलेगा right it is moving तो नीचे stereocilia भी moving. When stereocilia move you can see कि electrical signal generate हुआ. ये signal जा रहा है through the nerves. Okay and those nerves they form the vestibular part of the vestibulocochlear nerve or auditory nerve. Now let us talk about equilibrium. Equilibrium मतलब आप सीधे बैठ सकते हो सीधे चल सकते हो आप ऐसे हिलते डुलते नहीं चलते. Right. Why? Because your body can understand its equilibrium or balance. Okay. It is sensed by utricle, saccule and the 3 semicircular canal. तो जो स्नेल का हेड है वो हेड हमारे बैलेंस को मेंटेन करने या सेंस करने के लिए बना है. ऐसे समझ लो. ठीक है. Equilibrium are again of two types. You have static balance or static equilibrium. Static का मतलब क्या? अगर आप जो भी लीनियर एक्सेलरेशन होगा है ना आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में. So that linear acceleration will be sensed by your static balance या equilibrium. Okay, it will be included in these actually. Okay, चलो समझते हैं थोड़ा. Senses, what does it do? The static balance या equilibrium क्या करता है? तो it senses position of the head with respect to gravity. आप सीधे बैठे हो आपका सिर ऐसे झुका हुआ है. Are you looking at left? Are you looking in right? तो ये जो भी होगा that is all sensed by your static equilibrium या balance. Example, movement of your head up and down. ठीक है आप इधर देख सकते हो. This of course is maintained by macula. ठीक है जो static balance या equilibrium है that is sensed and maintained by macula. Macula हमने देखा they are present in utricle and saccule. तो आप देख सकते हो ये ऊपर otolith है. Otolith या otoconia which are the ear stones. ठीक है and these are the hair cells. अभी this is when your head is upright. अगर आपने हेड जो है वो नीचे किया या ऊपर किया तो ये पूरा जो भी ऑटोलिथ है या स्टोन्स है वो मूव करेंगे नीचे की तरफ. राइट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो वो मूवमेंट जो है दैट विल बी सेंस्ड बाय दीज नर्व्स एंड सेंड टू योर ब्रेन. तो आपका ब्रेन को समझ में आएगा कि ओके यू आर लुकिंग डाउन और यू आर लुकिंग अप. ठीक है. देन व्हेन यू लुक साइडवेज का मतलब लेट मी शो यू. ओके लाइक दिस साइडवेज ऐसे साइड okay not like yes and no वाला side but like this side जैसे कान आप shoulder पे touch करने की try करते हो. At that time also whatever the motion is sensed okay that is sensed by the macula involved okay in utricle as well as saccule. ठीक है. Right, so here is what happens when your head is upright. ये सारे otolith ऐसे इकट्ठा है and when you look down then all of the otolith they move down due to gravity. और इस हिसाब से your hair cells they will pick up this signal and they will send it to your brain. Then comes dynamic balance. हमने देखा static balance या equilibrium. अभी हम बात करेंगे dynamic balance या equilibrium की. It senses rotational movement या angular acceleration जो है उसको ये सेंस करेगा.
अभी बाकी कौन रहा? तो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द एम्पुला और क्रिस्टे ऑफ एम्पुला. ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्पुला इन द सेमी सर्कुलर कैनाल्स. ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ सच रोटेशनल मूवमेंट्स आर ट्वर्लिंग. मतलब अगर आप गरबा खेल रहे हो और घूम रहे हो गोल गोल, तो घूमने वाली चीज जो है दैट विल बी सेंस्ड बाय दीज एम्पुला. ओके, या फिर यू आर सेइंग नो, ऐसे मना कर रहे हो किसी को और मुंह जो हिलाते हो ना, तो दैट इज ऑल्सो योर रोटेशनल मूवमेंट. दिस इज सेंस्ड बाय एम्पुला, और एम्पुला के अंदर क्रिस्टे स्पेशली. The movement of endolymph, जो in the अंदर का endolymph है, you can see it with the red arrow. This movement it generates a nerve impulse. जैसे ये कुपला जो है वो अगर आप straight हो तो ये straight है, अगर आपने move किया तो वो ऐसे हिलेगा. जैसे ही वो हिला इस हिसाब से the nerve impulse is generated, and this is carried through your vestibular um, nerve of the auditory nerve. Okay, vestibulocochlear nerve है, तो वो vestibular nerve और cochlear nerve दो nerve से इकट्ठा होके बनता है. ठीक है, like this when you say no. Okay, ऐसे मुंडी from left to right हिलाते हो तो that is rotational movement, and that will be sensed by your dynamic equilibrium or balance. This is an example of twirling. आपने कभी भी जिमनिस्ट को देखा होगा तो वो ऐसे गोल गोल घूमता है ना, तो that is also sensed by your ampulla. Ending the lecture or ending the chapter with cochlear implant. Actually, I wanted to discuss this a problem where people are born deaf, या उनके कान में कहीं ना कहीं कोई problem होती है. Okay, then if their cochlea and the inner ear portion is okay, है ना, वो functional है, वो ठीक है, तो what happens is you can get this cochlear implant or hearing aid fixed. कैसे फिक्स करते हैं? तो एक सर्जरी माइनर करवानी पड़ती है. थ्रू दैट सर्जरी दे पुट अ वायर, है ना, ये पूरा वायर आपको दिख रहा है. दिस वायर विल गो थ्रू द राउंड विंडो, ये नीचे वाला राउंड विंडो, इनटू द कॉक्लिया, और ये अंदर तक जाएगा. टू दिस वायर इज कनेक्टेड द इम्प्लांट, और ये आपकी स्कल जो है उसके अंदर फिक्स कर देते हैं. नाउ ऑन द आउटसाइड, बाहर की तरफ आपको क्या दिखेगा? यू विल हैव अ ट्रांसमीटर, उसके साथ अटैच्ड वायर, और कान के ऊपर ऐसे लगा होगा. राइट, दिस एक्चुअली इज द स्पीच प्रोसेसर. मतलब आप जो भी बोल रहे हो या भी जो भी सुन रहे हो, सॉरी, सो देयर इज अ माइक्रोफोन. थ्रू दैट माइक्रोफोन द साउंड विल गो इन, दैट साउंड विल बी प्रोसेस्ड हियर. तो ये प्रोसेसिंग वाला यूनिट है, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल बी सेंड टू दिस ट्रांसमीटर. ट्रांसमीटर क्या करेगा? वो जो भी कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो इस इम्प्लांट को, जो खोपड़ी में है, अंदर है, स्कल के अंदर, दिस इज आउटसाइड, है ना, तो बाहर से अंदर की तरफ सिग्नल करेगा. नाउ दिस इम्प्लांट, ओके, थ्रू दिस देयर विल बी दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच विल बी पास्ड इनटू द कॉक्लिया, और जिस हिसाब से उसने सुना होगा, प्रोसेस किया होगा, उस हिसाब से वो कॉक्लिया में वाइब्रेशंस जनरेट करेंगे and nerve impulse generate करेंगे, and that is how even deaf people can hear sounds, okay, by use of cochlear implant. You can remove this outer unit, ये बाहर का unit आपको remove करना पड़ता है because you keep on charging it, okay, इनको charge करना पड़ता है. But as you can see इसमें surgery involved है. You have to put this implant and this wire or electrode inside, okay, and that is how you can cure hearing or deafness if the cochlea and other parts of the inner ear are okay. Clear? So here we end the chapter. And ear, I know it is a little complicated, but I tried my best to make you understand. ठीक है, अपने हिसाब से एक बार और पढ़ो, and then only it will become clear to you. So see you next time with a new chapter.